Good morning, students. Today I will discuss some examples related to hybridization based on the VBT theory, means valence bond theory. Example number 1, this is cobalt F6, means this is a coordination complex having 3 minus charge. First of all, we calculate the oxidation state. Suppose cobalt is X and fluorine having -1 charge, so having 6 fluorine ligands. So total charge is 6 minus 6, that is equal to -3. Then X is equal to +3. इसको इधर लेके आएंगे तो ये +3 बन जाएगा. तो cobalt having +3 charge. So cobalt atomic number 27, so its configuration is 3d74s2. In this case, cobalt having +3 oxidation state means 3 electrons are loose from the configuration. So 2 from here and 1 from here. Then its configuration is 3d6. So first we write down simple ground state configuration without charge, means cobalt is neutral. Its configuration is 3d7, so you fill the electrons according to Hans rule. 3d7 4s2. After that 4p and 4d, these are vacant orbital. In the excited state, before going to excited state, first we have check this is a weak field ligands or strong field ligands. If the ligands is strong field, then electrons are pair up. If the ligands are weak field, then only write down in same manner. In excited state, यहाँ से 3 electrons चले जाएंगे क्योंकि cobalt 3+ charge है, तो 2 electrons from here and 1 electrons from here, तो 3d6 is left and these are arranged in this manner. After that 6 fluorine ligands are coordinated to the cobalt atom. Cobalt is a central atom, metal atom. So 1 fluorine here, second, third, 4, 5 and 6. So hybridization is sp3d2. So hybridization is sp3d2. According to this hybridization, we can check the geometry. This is octahedral geometry, octahedral shape, and due to the presence of 4 unpaired electrons, this is pair up but these are unpaired. Due to the presence of 4 unpaired electrons, it shows a paramagnetic nature. This is paramagnetic in nature. And this form outer orbital complex because here nd orbital is involved. Now next example is nickel tetracyanide. Cyanide ion are present here and 2 minus charge is present. So in this case, nickel having supposed to be X. After that cyanide having -1 charge, so this is -4, that is equal to -2. X is equal to -2, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा. Then nickel having a +2 oxidation state and this will shows 3d8 4s0. ये निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो हमने यहाँ पे ये फिल कर दिया 3d8 and 4s0. नेक्स्ट 4p में जाएगा. बट अब निकल के ऊपर 2+ चार्ज है, तो यहाँ पे जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये निकल 2+ की है. 2+ मीन्स लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे, आपके S से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं 4s2. 4s2 का मतलब है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए और यहाँ कितना बचा 4s0. इसका मतलब यहाँ पे मैंने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लगाया, इसमें डायरेक्ट 3d8 यहाँ फिल कर दिया. अब 3d8
अब हमें सिर्फ ये चेक करना है जब हम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे कि जो CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब वहाँ पे पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो वो आसानी से घूम नहीं पाएगा, स्पिन उसकी कैसी हो जाएगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो इस वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ये इनवर्स डायरेक्शन में यहाँ चला गया एंटी पैरेलल स्पिन में, और अब ये जो ऑर्बिटल है दैट विल बी वेकेंट। अब 6 साइनाइड 4 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 CN नेगेटिव फिल करना है, 1 2 3 एंड 4। तो दिस इज द DsP2 orbital. This is the hybridization. And according to coordination number 4, this is the strong field ligands. It form a square planar complex. अगर D पहले आता है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज़ अ डायामैग्नेटिक। क्या बनाता है ये, डायामैग्नेटिक शो करता है। नाउ नेक्स्ट इज NiCO4. CO मीन्स कार्बोनिल ग्रुप एंड 4 times. Here nickel having oxidation state is 0. Why this is shows 0 oxidation state? Because carbonyl having 0 oxidation state means carbonyl having no charge. So this is neutral ligands na, so 4 multiply 0, this is 4, and nickel having plus 0 charge. अब 0 चार्ज है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ ये रहेगी 3D8 4s2। आफ्टर दैट वी चेक द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो सी कार्बोनिल CO ग्रुप है, तो ये आएगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। If this is strong field ligand, then electrons are pair up. Electrons are pair. After that, they form low spin complex. Low spin complex is formed. So in this is the ground state, but in excited state, these electrons are pair up. These electrons are pair up in the excited state. So जो electrons था वहाँ से यहाँ चला गया, तो ये 3D10 बन गया हमारे पास। जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों के दोनों, एक इसके पास चला गया, एक इसके पास चला गया, तो वो क्या रहा आपके पास, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड अप हो गए। अब यहाँ पे CO4 टाइम्स है, इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। देन 4 CO इज अटैच्ड टू दिस सेंट्रल मेटल एटम, तो 1 2 3 4। सो दिस शोज द sp3 hybridization, and due to this form a tetrahedral shape, sp3 hybridization and diamagnetic nature, because all the electrons are paired up. अब one more question is that in case of NiCN for 2 negative and NiCO4 या NiCl4, यहाँ पे चार्ज लेंगे हम 2 नेगेटिव। देखने में दोनों सेम है, but according to hybridization and its shape both are different from each other. कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम है, बट सेंट्रल मेटल एटम सेम है, but ligands are different. Here strong field ligands are present, so due to strong field ligands electrons are pair up. If the electrons are pair up, say this shows low spin complex, and this is diamagnetic. In case of Cl, chlorine is a weak field ligand, so due to this weak field electrons are don't pair up, they are unpaired. If electrons are unpaired, then it form a high spin complex because they easily spin. And
this shows a paramagnetic nature. Otherwise both the compounds are same in appearance, but they show different structures, different hybridization. In this case, cyanide case, this is the this shows the dsp2 hybridization, means inner orbital complex is formed and square planar shape is there, diamagnetic low spin complex will form. But in this case, chlorine is a weak field ligand, so it shows sp3 hybridization. Due to sp3, its shape is tetrahedral and nature is paramagnetic. So this is the important example for your exam beta. Now next is COF6 3-. Here first of all we find out the oxidation state. Suppose this is X, this is -6, that is equal to -3. In this case, cobalt having +3 oxidation state. Oxidation state is that is hybrid, that is electronic configuration is 3d7,4s2. This is the cobalt electronic configuration. So we fill first of all 3d7 and after that 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब हमें क्या करना है, कोबाल्ट 3+ निकालना है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिड्यूस कर देंगे तो हमारे पास 6 बचेंगे. तो 3d6 इज लेफ्ट. दिस कैन फिल अकॉर्डिंग टू हंस रूल 1 2 3 4 5 and 6. After that 1 fluorine, 2 fluorine, 3 4 5 6 fluorine is coordinated to the central metal atom. This is cobalt. So this form the sp3d2 hybridization. Okay. अब fluorine is a weak field ligand, so don't pair up the electrons. तो कैसे रहेंगे, weak field ligands की वजह से उनकी स्पिन कैसी रहेगी, हाई. They form high spin complex and electrons don't pair up, they remain as it is रहेंगे. तो ये आपका आएगा पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज शोज वीक फील्ड लिगेंड्स एंड octahedral shape because due to the presence of 6 coordination number, and this shows sp3d2 hybridization. This means outer orbital complexes form. Now the same example, this is CO, but here En, ethylene diamine complex is present, that is thrice and 3+. अब बेटा यहाँ पे थ्राइस क्यों आया, यहाँ पे 6 आना चाहिए था क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होता है, 3 वाला तो कोई कोऑर्डिनेशन नंबर है ही नहीं. यहाँ पे 3 इसलिए आया बेटा क्योंकि इन जो होता है इथाइलिन डायमीन, ये बाइडेंटेट लिगेंड है. कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही दे रहा है, तो 2 3 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अब भी 6 है, तो ये क्या बनाएगा 3+ चार्ज. तो पहले हम निकालेंगे इथाइलिन डायमीन पे चार्ज न्यूट्रल होता है, ये इस पर कोई चार्ज नहीं होता. इट मीन्स 3 × 0 दैट इज इक्वल टू 0 एंड कोबाल्ट हैविंग +3 चार्ज. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो 3d7,4s2 आता है, लेकिन जब हम कोबाल्ट +3 में लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से चले जाते हैं और 1 3d से चला जाता है, तो हमारे पास 3d6 बनता है. तो हम इसको फिल करेंगे 3d6 को इसी मैनर में, सेम एज इट इज़. फिर हम देखेंगे कि En क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेंगे, हम इसकी पेयरिंग कर देंगे. देखो बेटा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला जाएगा तो ये पेयर अप हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला जाएगा, इसके पास, तो ये पेयर अप हो गया. अब ये वेकेंट हो गई, तो इस वेकेंट होने में क्या आ जाएगा, यहाँ पे En कोऑर्डिनेट करेगा. अब En जो होता है वो बाइडेंटेट लिगेंड है, तो 2 लिगेंड यहाँ पे जुड़ जाएंगे ऐसे ही. फिर इसके साथ भी यही 2, इसके साथ भी यही 2, मतलब 3 En जुड़ेंगे, बट वो काम किसका करेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड्स का. तो 3 2 6, तो 6 आपके जो है यहाँ पे फिल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 6 ऑर्बिटल्स आपके फिल हो जाएंगे.
तो ये शो करेगा बेटा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल, और ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, सो इट इज़ डायमैग्नेटिक। और En है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करेगा। तो ये आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट बेटा K4MnCN6, ये है आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फिर हम ग्राउंड स्टेट में उस एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर उसको ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे। आफ्टर दैट ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन के ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे, उनको नॉर्मली तरीके से फिल करेंगे। एक्साइटेड स्टेट में फिर हमें ये चेक करना है कि जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप कर दो, अगर वीक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स को एज इट इज छोड़ दो, और यहाँ पे लिगेंड्स जो है कोऑर्डिनेट कर दो। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, उसका नेचर बताओ, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो हाई स्पिन बनाएगा, लो स्पिन बनाएगा, और क्या उसकी शेप होगी, ये सब आपको बताना है इसके अंदर। तो देखो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो पोटाशियम हैविंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज़ 4 K आयन, तो 1 × 4 प्लस इसकी हमने x मान ली, प्लस साइनाइड हैविंग -1 चार्ज, तो -1 × 6 दैट इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +2। सो दिस मैग्नीज हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट विल फॉर्म 3D5। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है Mn की, 3D5 4s2, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है तो 4s2 चला गया, क्या बचा 3D5। अब हमने इसको 3D5 के अकॉर्डिंग फिल कर लिया, 1 2 3 4 5। अब इसमें हम आगे वाले वेकेंट ऑर्बिटल्स शो करेंगे, जैसे 4s 4p, 3D के बाद 4s 4p एंड 4D फिल करते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ बेटा, Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, फर्स्ट वाले के पास, लास्ट सेकेंड वाले के पास। अब ये जो है आपके पास, ये वाला जो है, अब इस केस में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला गया। अब ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स इज लेफ्ट हियर। After that you coordinate the CN ligands 1 2 3 4 5 6, कंटिन्यू आपको इसको जोड़ना है। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, D2sp3, ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन बन गई। और D पहले आया है, इट मीन्स इट शोज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एंड ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इट फॉर्म octahedral shape, and if the strong field ligands is present then it form high या low spin, it form low spin complex, it form low spin complex and its nature is paramagnetic due to presence of one unpaired electron। देखो बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Here we take next example, example number 7, that is chromium H2O twice C2O4 twice। अब बेटा यहाँ पे आपको देखना है, water is a neutral ligand but oxalate is bidentate ligand, so 2 2 जा 4 4 और 2 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, 4 नहीं है क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो 2 2 जा 4 4 और 2 6, इट मीन्स ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम x मानेंगे, वाटर न्यूट्रल होता है बेटा, 0 आ जाएगा। ऑक्सीलेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, तो ये आ जाएगा x -2, 2 ऑक्सीलेट है ना, तो -2 दैट इज इक्वल टू -1। तो इस केस में हम इस 1 ऑक्जेलेट पे -1 चार्ज है, तो इस केस में हम क्या लेंगे, 2 ऑक्जेलेट है हमारे पास, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -2, ठीक है।
अब इसमें क्या होगा कि x माइनस टू टू जा 4, -4 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +3। ये आ जाएगा बेटा x प्लस 0 -4 इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू +3। अब क्रोमियम हैविंग +3 चार्ज, इट मीन्स दिस 3d3 4s0। वैसे तो 3d3 4s क्रोमियम का क्या होता है 3d4, नो 3d5 4s1, ये इसकी एग्जैक्ट होती है बेटा कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। अब हमें 3 प्लस निकालना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, तो हमारे पास बचेंगे 3d3 4s0। ठीक है, अब क्रोमियम को ग्राउंड स्टेट में फिल करो, 3 इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3। अब पहले हम सिंगली फिल्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू हंस रूल, आफ्टर दैट पेयर अप करते हैं। फिर हमारे पास अब हम चेक करेंगे कि ये किस टाइप के लिगेंड्स है। अब वाटर तो वीक फील्ड लिगेंड्स है, ऑक्सीलेट भी वीक फील्ड है, तो हम क्या करेंगे इसकी पेयरिंग अप नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ अपने जो है आयन से सारे फिल करेंगे, लिगेंड्स फिल करेंगे। अब वाटर 1 2 कहीं पे भी आप फिल कर सकते हो 1 और 2। ठीक है, इनमें कहीं पे भी वाटर यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी ऑक्सीलेट फिल कर सकते हो। तो 2 तो वाटर करने हैं, उसके बाद ऑक्सीलेट 1 और 2, 1 ऑक्सीलेट 1 और 2 दूसरा ऑक्सीलेट, तो 2 ही ऑक्सीलेट है हमारे पास। क्योंकि ऑक्सीलेट बाइडेंटेट लिगेंड्स है, इस वजह से इनको 4 ऑर्बिटल में फिल करेंगे। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रही D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन रही। So this form octahedral complex paramagnetic nature due to the presence of 3 unpaired electrons. These are the 3 unpaired electrons. So its hybridization is D2sp3. It form inner orbital complex. Now take next example, that is CONH36 और 3+ charge. इस केस में क्या है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सपोज टू बी एक्स। अमोनिया क्या है, अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड्स, सॉरी दिस इज अमीन नॉट अमोनिया, अमीन इज अ न्यूट्रल लिगेंड्स। सो दिस हैविंग 0 चार्ज, तो कोबाल्ट क्या रहा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोबाल्ट +3 दैट इज इक्वल टू 3d74s0। वैसे इसकी होती है 3d 3d74s2, बट अब यहाँ पे 3 चार्ज है, तो 2 यहाँ से जाएगा और 1 आपका यहाँ से जाएगा, तो ये आपका बचेगा 6। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में हम पहले इसकी डायरेक्ट फिल करते हैं 3d74s2, ये हमने फिल कर दिया सिंपल। अब कोबाल्ट +3 ले लिया, यहाँ पे +3 आने से 3 इलेक्ट्रॉन्स कट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन से ये ना पहले सिंगली फिल्ड करेंगे, आफ्टर दैट इसकी पेयरिंग करेंगे। अब ये बचा 3d6, तो हमने 3d6 वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल कर दिए। अब वी चेक NH3 अमीन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और नॉट, तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसमें क्या करेंगे पेयर अप कर देंगे, सभी को पेयर अप कर दिया। अब इसके पास 2 ऑर्बिटल्स वैकेंट हो गए, ये बच गया, तो 1 2 3 4 5 6 ये बन गया, तो ये बना D2sp3। D2sp3 मीन्स दिस फॉर्म अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स and coordination number is 6, so it form a octahedral geometry like this, inner orbital complex, low spin, D2sp3 और octahedral shape। so इस तरीके से हम आप VBT के अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा फॉर योर एग्जाम। Now next is limitation of valence bond theory. First limitation,
It does not differentiate between the weak and strong ligands. ये अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि कौन से लिगेंड्स जो हैं स्ट्रॉन्ग है, कौन से लिगेंड्स वीक हैं. It does not give any explanation for the कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि जो कॉम्प्लेक्स हमारे बन रहे हैं, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हैं या टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनका कलर क्या है. It does not give exact explanation of thermodynamic or kinetic stabilities of coordination compound, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो थर्मल स्टेबल हैं या काइनेटिकली स्टेबल है. It does not tell about the magnetic moment, ये मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी नहीं बता पाया. मैग्नेटिक मोमेंट में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं से मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, जो होता है म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n+2 n+1 सॉरी, रूट ऑफ n+1. तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी नहीं बता पाया. दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ डिफरेंट शेप, कि जो हमने डिफरेंट शेप बताई है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, तो उसकी एनर्जी क्या है, और एनर्जी से ही स्टेबिलिटी बनती है. सो इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एनर्जी ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस. नेक्स्ट, it does not explain to predict the tetrahedral and square planar structure of coordination complex 4, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये नहीं बता पाया कि वो टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा या स्क्वायर प्लेनर शेप बनाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. जबकि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सेम होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है दोनों का ही, बट एक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, वो स्क्वायर प्लेनर बनाता है, और वीक हमेशा टेट्राहेड्रल बनाता है. बट कैसे बनाता है, इट डज नॉट प्रिडिक्ट. सो ऑल दीज आर द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सो इन द VBT theory there are a large number of assumptions. So after that CFT theory will give. CFT theory give. In the CFT theory, CFT means crystal field theory.